आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे फ्लूइड काइनेमेटिक्स। तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स है क्या? तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स एक ब्रांच है फ्लूइड मैकेनिक्स की जो डील करती है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन किसकी, पार्टिकल्स की जो फ्लूइड में मौजूद होते हैं उनके बारे में, और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हो स्पेस में without considering any force or energy. In other words, you can say that fluid kinematics is a branch of fluid mechanics which deals with the study of velocity and acceleration of the particles of fluid in motion and their distribution in the space without considering any force or energy involved. Normally, there are two approaches. There are two methods for this description of fluid motion. One is Langrenn method, second one is Eulerian method. What is difference between Langerian and Eulerian method? In Langerian method, observer concentrate on the movement of single particle. We have to see the motion of single particles, how it is moving, which path it is following, and how its velocity is changing, how its acceleration is changing. Then you can say that the part taken by the particle and change in its velocity and acceleration are studied in this. In the we know that in Cartesian vector form we can show the space in x, y, z axis at any time t from the position ABC. So here is the x coordinate of the space, which is function of a, b, c. A, b, c mean position and t is the time. Mean x is the function of position and time. Similarly, y is the function of position and time. Okay, and z is function of position and time. It means when we draw a coordinate in the space, then it will occupy x, y, and z plane if we see it in 3D planes, until unless it follow one axis. तो नॉर्मली हम लेते हैं जैसे कि इट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, तो वी कैन से दैट वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट. ओके, mean delta x is the displacement and t is the time. We can say that s upon t is called velocity. So here x represent the distance. Then we can say that u component mean ke x it is component in x direction, this component is y direction, and this component is z direction. So u is the x component. Then we can say that u is equal to delta x by delta t. Delta x mean change in displacement in x direction upon delta t. Similarly for y, delta y upon delta t, and similarly for w, delta w z upon delta t. And for acceleration we can say that we can double derivative it, that displacement upon time square. So we can say the double derivative. Okay, then ax is equal to delta square x upon delta t square. Mean two times हमने derivative करना है for ay and az also. X represent, here u was representing x component, now x is representing x component, this is representing y component. Similarly, these are the points. We can say the resultant is obtained from Rx. As we have studied in many subjects, resultant is equal to Rx square plus Ry square plus Rz square. Here x component is u, y component v, and z component w. We can say that u square plus v square plus w square. This is the resultant vector. And for acceleration, we can say that x, ay, az are the x, y, z component. We can say the resultant is ax square plus ay square and az square. These are the respective component of the resultant vectors. And in Euler approach, we will observe on a point in a fluid. In Langrenn approach, we are observing particles. Now in this Euler approach, we will observe a point.
mean we will select a point in the fluid, then we will study velocity, acceleration and other characteristics of the fluid at that particular point. This is called Eulerian approach. This is the simple method. It is almost used in every method throughout the fluid mechanics. And this again u is the function of x, y, z and t, and v is the function of x, y, z and t as it was discussed in Langevin approach. Now what is difference between Eulerian and Langevin approach? In Eulerian approach we will take all the coordinates such as du is equal to, we have to represent change in velocity, then du is equal to partial derivative u with respect to x. Then there was no dx in the Langevin approach. Now here we are taking a particular point, so we multiply at dx plus delta u upon partial derivative u with respect to y into dy plus partial derivative u with respect to z into dz plus partial u with respect to t into dt. This is the du. Similarly, we'll do it for ax. Ax is partial u with respect to t, as we have studied before. Then we can say that partial u with respect to x dot dx by dt, derivative of x with respect to t. Now similarly, partial u with respect to y into derivative of y with respect to t, and partial u with respect to z dot derivative of z with respect to t. Okay, and plus now this term is remaining partial u with respect to dt upon dt, तो dt will cancel. तो हम कह सकते हैं dx by dt is equal to u, dx by dt u के बराबर है, dy by dt is equal to v, dz by dt is equal to w. तो इनको हमने अब क्या करना है, ये हमने पुट करने हैं। तो ये कैसे है, तो हमें पता है कि ये चेंज इन एक्स डायरेक्शन अपॉन टी, तो ये वेलोसिटी है न्यू कंपोनेंट, तो इस तरह v कंपोनेंट, इस तरह w कंपोनेंट। तो x या du by dt, u du by dx partial u with respect to x plus v partial u with respect to y। इस तरह हमने क्या किया, इनको पुट कर दिया इस इक्वेशन में जो हमने ये इक्वेशन ली थी। तो dx by dt u लिख लिया है और ये v के बराबर लिख लिया है एंड ये w के बराबर लिख लिया है। ठीक है, तो इसी तरह सब में हमने इस तरह कर लिया है, ए एक्स ए वाई ए जेड मिल गया। इस तरह रिजल्टेंट जो है हमारे पास सेम मिलेगा जैसे हम पहले फाइंड आउट करते हैं, v इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, ए इज इक्वल अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए जेड स्क्वायर एंड इट इज ए जेड स्क्वायर। ओके, नाउ वेलोसिटी इन मोशन, वेलोसिटी नोटेशन यू आई वी जे प्लस डब्ल्यू के, ए इज डी वी बाई डी टी, here this is equal to u partial v with respect to x plus v partial v with respect to y plus w partial v with respect to z plus partial v with respect to t। तो ये सारे होते हैं, तो नॉर्मली हमारे पास रिजल्टेंट जो मिलता है अंडर रूट में निकलता है हमारे पास, जिसमें भी सारे अप्रोचेज में अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, और रिजल्टेंट ऑफ ए निकलता है अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो आपने डिफरेंट टाइप्स के फ्लूइड पढ़े होंगे। तो हमने डिफरेंट टाइप के फ्लूइड्स फ्लो पढ़े थे, एक तो थे स्टडी एंड अनस्टडी। तो इनका मैं ओवरव्यू दे देता हूँ फिर से। तो इसमें किस तरह यूज होंगे ये भी बताता हूँ। स्टडी फ्लो कौन सा फ्लो होता है, ऐसा फ्लो जिसमें वेलोसिटी या प्रेशर या डेंसिटी चेंज ना हो विथ टाइम, तो उसको हम बोलते हैं स्टडी। मीन डेल्टा टी या डेल्टा चेंज होता है ना हो, मीन के पहले जो प्रॉपर्टी थी कुछ टाइम बाद उसी पॉइंट पे प्रॉपर्टी सेम रहेंगी, तो उस फ्लो को हम बोलते हैं स्टडी फ्लो। ठीक है, जैसे कि इसमें प्रेशर डेंसिटी वेलोसिटी जो है ये सारे एग्जांपल आ जाते हैं स्टडी फ्लो के।
तो उसमें क्या पर डेल्टा चेंज जो है, चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन जिस चीज़ में भी है नहीं होता, तो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी हम बोल सकते हैं इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि चेंजिंग नहीं है तो उसका डिफरेंस लेंगे तो जीरो आता है। तो पार्शियल यू विथ रेस्पेक्ट टू इज इक्वल टू जीरो लिया जाता है। सिमिलरली पार्शियल वी विथ रेस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू जीरो, पार्शियल डब्ल्यू विथ रेस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू जीरो होता है। तो ये यू वी डब्ल्यू कंपोनेंट है। सिमिलरली पार्शियल पी विथ रेस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू जीरो होता है और पार्शियल डेंसिटी और विथ रेस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, तो ये वाले कंपोनेंट कहलाते हैं स्टडी फ्लो के। दूसरा होता है अनस्टडी फ्लो, मीन के ऐसा पॉइंट जिसमें प्रॉपर्टीज चेंज हो विथ रेस्पेक्ट टू किसी पॉइंट पे टाइम से हमारे पास द टाइप ऑफ फ्लो इन विच वेलोसिटी प्रेशर एंड डेंसिटी एट अ पॉइंट चेंज। ठीक है, तो चेंज होती जाए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो उसमें चेंज होती जाए टाइम के साथ, तो उसको हम बोलते हैं अनस्टडी फ्लो। तो इसमें क्या है, पार्शियल यू विथ रेस्पेक्ट टू टी इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमारे पास चेंजिंग में इसमें डिफरेंस आता है। तो इसका एग्जांपल क्या है, फ्लो इन पाइप हुज वॉल इज बीइंग ओपन एंड क्लोज्ड ग्रेजुअली। उसके बाद यूनिफॉर्म फ्लो होता है। यूनिफॉर्म फ्लो मीन के स्ट्रेट लाइन फ्लो, जिसमें यूनिफॉर्म फ्लो मीन के हमारे पास ऐसा टाइप का फ्लो जिसमें वेलोसिटी एट अ गिवन पॉइंट गिवन टाइम जो है चेंज ना हो, थ्रू आउट द सेक्शन सेम रहे, throughout the section same rate. Type of flow in which velocity at any given time does not change with respect to space in is called uniform flow. तो अब पाइप में एक फ्लो हो रहा है, एक सीधा सीधा हो रहा है, तो प्रॉपर्टीज उसकी चेंज नहीं हो रही, तो उसको हम यूनिफॉर्म बोल रहे थे। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म जिसमें टाइम के साथ चेंजिंग आ रही है। ठीक है, तो इसलिए इसमें अगर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन डायरेक्शन या डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर इज इक्वल टू जीरो होता है। इसमें क्या है, ये नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये फ्लो थ्रो नॉन प्रिस्मेटिक कंड्यूट या फ्लो अराउंड यूनिफॉर्म डायामीटर पाइप, इसमें ये जो है दोनों में आ जाता है ये। उसका है वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल फ्लो। वन डायमेंशनल फ्लो कौन सा होता है, ऐसा फ्लो जिसमें फ्लो पैरामीटर सच ए वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम एंड वन स्पेस कोऑर्डिनेट ओनली। ठीक है, तो ये फंक्शन ऑफ टाइम हो और वन स्पेस कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा हो। u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वी इज इक्वल टू जीरो एंड डब्ल्यू जीरो, क्योंकि एक ही पे डिपेंड कर रहा होता है, u ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है एंड v जीरो और w जीरो लिया जाता है। जैसे फ्लो इन पाइप है, ठीक है, इसका टू डायमेंशनल फ्लो u इंटू एफ वन एक्स वाई, तो ये टू चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होगा, टू चीज़ों का फंक्शन होगा। जैसे रेक्टेंगल कंपोनेंट है स्पेस में, तो u इज एफ वन एक्स वाई, is your f2 xy और w जीरो, तो फ्लो between parallel plates of infinite extent या फ्लो in the main stream of white river, ये दोनों एग्जाम्पल इसमें आते हैं। थ्री डायमेंशनल फ्लो, ऐसा फ्लो जिसमें वेलोसिटी फंक्शन और टाइम का और थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा हो, तो u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जेड, तीनों वेरी कर रहे होंगे, इसमें दो वेरी कर रहे थे, इसमें एक वेरी कर रहा है। तो वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल फ्लो इस तरह कहा जाता है। इसी तरह रोटेशनल फ्लो, और रोटेशनल फ्लो, a flow is said to be rotational if fluid particle while moving in a direction of flow rotate about their mass center। ऐसा फ्लो जिसमें हमारे पास फ्लूइड पार्टिकल है रोटेट कर रहा हो अपने मास सेंटर पे। ठीक है, फ्लो नियर द सॉलिड बाउंड्री जो है रोटेशनल फ्लो होता है। एरोटेशनल फ्लो, जिसमें एरोटेशनल फ्लो क्या होगा, जिसमें फ्लूइड पार्टिकल व्हाइल मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो डू नॉट रोटेट अबाउट देयर मास सेंटर। इसका फ्लो अबव अ ड्रेन होल जो है, ये स्टेशनरी टैंक में जो है, यही कहलाता है रोटेशनल फ्लो। ठीक है, जैसे कि आपने ड्रेन होल देखा होगा, उसमें पानी किस तरह जाता है वॉश बेसन में। ठीक है, अब हमारे पास लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो होता है। स्ट्रेट लाइन फ्लो को हम बोलते हैं लेमिनार फ्लो, द फ्लो इन विच वन इन is one in which path taken by individual particle do not cross one another। तो पाथ टेकिंग जो कर रहा है वो एक दूसरे को क्रॉस ना करे और मूव along a well defined path, और ये वेल डिफाइंड पाथ पे मूव करे, तो फ्लो थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब, फ्लो ऑफ ब्लड इन वेन्स, ये सारे इसमें एग्जांपल आ रहे हैं। टर्बुलेंट फ्लो कौन से हैं, टर्बुलेंट फ्लो इज दैट फ्लो इन विच फ्लूइड पार्टिकल मूव इन अ जिगजैग वे, तो फ्लूइड पार्टिकल जिगजैग वे में मूव कर रहा हो, तो स्ट्रेट लाइन फ्लो लेमिनार फ्लो कहता है, ये टर्बुलेंट फ्लो कहता है, जिगजैग वे में कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर डिफरेंट रेंजेस है रोनाल्ड नंबर की। रोनाल्ड नंबर रो बी एक्स डिवाइड बाई म्यू होता है, तो उसकी रेंजेस होती हैं।
अगर रोनाल्डो 2000 से लेस होगा तो हमारे पास क्या होगा, लेमिनार फ्लो. इफ रोनाल्डो नंबर इज ग्रेटर देन 4000 then it will be turbulent flow, and it is if it is between 2000 and 4000 then it is called transitional flow, mean in between laminar or turbulent. Beside this, we have compressible and incompressible flow. What is compressible flow? It is the flow in which density of fluid change from point to point. ऐसा फ्लो जिसमें डेंसिटी और चेंज ऑफ फ्लूइड की पॉइंट टू पॉइंट, तो उसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबल फ्लो. फॉर एग्जांपल, व्हेन वी प्लेस अ लिक्विड और एयर इन अ कंप्रेसर, when cylinder moves from T, move and it compress, then what happened, the volume is changing, I mean its density is changing. This is the example. And another now incompressible, what which is called incompressible, a flow in which density does not change. तो डेंसिटी इसमें चेंज ना हो, भले हम कंप्रेस करें तो उतना ही रहे, तो उसको हम बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल. इसमें सबसोनिक एरोडायनामिक्स. ये एग्जाम्पल है अब टाइप ऑफ फ्लो लाइंस. तो आप पाथ लाइंस, स्ट्रीम लाइन एंड स्ट्रीम ट्यूब, ये तीन कहलाते हैं. तो पाथ लाइन क्या होता है? पाथ लाइन इज पाथ फॉलोड बाय फ्लूइड पार्टिकल इन मोशन. तो पाथ कोई भी फ्लूइड पार्टिकल फॉलो करे इन मोशन तो उसको हम बोलते हैं पाथ लाइन. ठीक है. स्ट्रीम लाइन क्या होती है? ऐसी लाइन जो डिफाइन की जाए इमेजिन लाइन विद इन द फ्लो so that the tangent at any point on indicate the velocity. तो यहाँ पर इसके ऊपर जो टेंजेंट निकाल रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी को ये रिप्रेजेंट कर रहे होंगे एक पॉइंट पे. तो dx बाई यू हो जाएगा dy बाई v w बाई w. Flowing point about streamline are worth nothing. A streamline cannot itself intersect itself nor two streamline. तो streamline आपस में intersect नहीं कर सकती. They cannot be movement of fluid particle across the streamline. ठीक है. इस तरह डिफरेंट पॉइंट्स हैं. इस तरह स्ट्रीम ट्यूब क्या है? ऐसा ट्यूब जिसमें फ्लूइड मास बाउंडेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीम लाइंस. तो जिसमें ऐसा मास जिसमें ग्रुप ऑफ स्ट्रीम से ये बाउंडेड हो तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रीम ट्यूब. ठीक है. इसकी थ्योरी आप पढ़ लेना, आप लोग है नहीं तो हम ज़्यादा डिस्कस करते हैं. स्ट्रिक लाइन क्या है, ये क्या है. तो हम आते हैं न्यूमेरिकल पे. इन अ फ्लूइड द वेलोसिटी फील्ड इज गिवन बाय, तो हमें पता है कि वेलोसिटी फील्ड जो है गिवन की जाती है v इज इक्वल टू 3x प्लस 2y i 2z प्लस 3x स्क्वायर j प्लस 2t माइनस 3z k. Determine the velocity component u, v, w at any point in the flow field. The speed at around point 111, the speed at time 2 seconds, and classify velocity field as steady or unsteady, uniform or non-uniform, and 1, 2 और 3 dimensional. तो हमने क्या करना है, v बता दिया हमने 3x प्लस 2y i प्लस 2z प्लस 3x स्क्वायर j प्लस 2t माइनस 3z k. ठीक है. तो हमने ये बता दिया. तो वेलोसिटी कंपोनेंट हमने फाइंड आउट करने हैं. तो u इज इक्वल टू 3x प्लस 2y, v इज 2z प्लस 3x स्क्वायर, w इज 2t माइनस 3z. तो वहाँ पर ये निकाल दिया. तो हमारे पास ये आ गया वेलोसिटी कंपोनेंट. क्यों से ये वाला x कंपोनेंट है, इसने पूछा पहले कहा u v w कंपोनेंट बताएं. तो u कंपोनेंट ये है, v कंपोनेंट j वाला है और z कंपोनेंट k वाला है. तो ये हमारे पास u v w कंपोनेंट आ गया ये वाले. ठीक है. अब हमें पूछा गया है स्पीड एट अ पॉइंट 1,1,1. तो हमें पता नहीं है स्पीड एक पॉइंट पे 1,1,1 पे. तो हमने क्या करना है सिंपली, तो हमने पहले क्या करना है, स्पीड बतानी है 1,1,1 पे. तो हमने क्या करना है, इन सब का अंडर रूट लेना है पहले. अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जैसे हम रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करते हैं उसी तरह हमने इसका अंडर रूट लेना है. तो अब हमारे पास u की वैल्यू में इसमें यहाँ पर ये बताया गया x1 है, y1 है और z1 है. तो u में अपने x और y1 पुट करना है. तो 3 प्लस 2 इजिकल टू 5. इस तरह v में आप पास आपका क्या 2z प्लस 3x स्क्वायर है. तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 तो 5, ये भी तो 2t माइनस 3z. तो ये क्या हो जाएगा 2t माइनस 3z. तो t हमें अभी गिवन है क्या, नहीं गिवन. तो अब हमने क्या करना है, वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर. तो हमने क्या करना है, इस फॉर्म में पुट करना है. तो अंडर रूट में हम लेंगे तो इसको क्या आएगा 5 स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3 होल स्क्वायर. तो इसको सोल्व करेंगे तो 25 प्लस 40 स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9. तो 40 स्क्वायर माइनस 12t प्लस 59. तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 40 स्क्वायर माइनस 12t प्लस 59, ये आंसर आ जाएगा. सिमिलरली स्पीड जो है 2 सेकंड पे क्या है, पॉइंट पे 0,0,2 पे. तो हमारे पास क्या होगा,
तो बताया गया है स्पीड एट टाइम 2 सेकेंड एट पॉइंट 0,0,2 पे। अब अपने क्या करना है, x की जगह 0 पुट करना है, y की जगह 0 पुट करना है और z की जगह 2 पुट करना है और टाइम की जगह भी 2 पुट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, x u क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 2 to the 4 क्योंकि ये 0 हो जाएगा। तो 0 4 w में इसी तरह हमने पुट कर लिया 2 to the 4 माइनस 2 3 the 6, तो -2 आ गया। तो ये हमने पुट कर लिए, इस तरह पास आंसर आ जाएगा v का v 4.472। तो v एट अ गिवन एक्स वाई जेड डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो आपस किस पे डिपेंड कर रहा है पहले केस में, तो हमने तो ये देखना है क्या ये डिपेंड कर रहा है टी पे, ये डिपेंड कर रहा है टी पे। तो ये क्या होगा अनस्टडी फ्लो, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है टी पे, ठीक है। तो टी पे डिपेंड होगी मीन के आपस चेंजिंग हो रहे हैं तो अनस्टडी फ्लो होगा। सेकंड में देखें क्या ये डिपेंड कर रहा है टी पे, सेकंड में ये डिपेंड कर रहा है टी पे और चेंज हो रहा है विथ एक्स डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो अब देखें टी चेंज हो रहा है तो आपस डब्ल्यू कंपोनेंट चेंज हो रहा है, तो हम इनके वेलोसिटी में चेंजिंग आ रही है विथ रेस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो आपस क्या हो रहा है, इसके दूसरे कंपोनेंट भी चेंज हो रहे हैं। तो आपस क्या है, ये डिपेंड कर रहा है टी पे और चेंज हो रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो इसको नॉन यूनिफॉर्म फ्लो बोल सकते हैं। उसके अलावा आपस थर्ड में क्या, सिंस वी डिपेंड ऑन एक्स वाई जेड, तो वी डिपेंड कर रहा है एक्स वाई जेड पे, इसलिए ये कौन सा फ्लो है, 3 डायमेंशनल फ्लो। तो अब देखें ये एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा, 0,0,2 है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास क्या होगा, ये डिपेंड कर रहा है इन तीनों चीज़ों पे, तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 3 डायमेंशनल फ्लो है। इस तरह ये न्यूमेरिकल वेलोसिटी फॉर अ 2 डायमेंशनल फ्लो फील्ड इज गिवन बाय v is equal 3 plus 2xy plus 40 square plus xy square plus 3t j, find the velocity and acceleration at point 1 comma 2 after 2 seconds। तो वेलोसिटी में गिवन है 3 plus 2xy plus 40 square I plus xy square plus 3t j। तो हमने क्या करना है इसमें, तो फाइंड करनी है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आफ्टर 2 सेकंड के लिए। तो आपने क्या करना है, अगेन पिछले नंबर के तरह इसमें वैल्यूज पुट करनी है। x की जगह क्या आएगा 1, y की जगह 2 और t की जगह 2। तो 3 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2, ठीक है। अब हमारे पास क्या है 2 इंटू 1 इंटू 2 आ गया, 2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू टी स्क्वायर क्या है 2 स्क्वायर प्लस 1, x क्या है 1, y 2 है तो 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू टी किया 2 आ जाएगा इंटू जे, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 23i प्लस 10j। तो अंडर रूट लेंगे इसका 23 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो 25.08 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया वेलोसिटी। इसी तरह एक्सेलरेशन भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन कैसे होगी, अब हमारे पास हमें पता है कि हमने फार्मूला पढ़ा था 3 में, तो हमारे पास था u du बाई डी एक्स, मीन के u पार्शियल u v विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस v पार्शियल v विथ रिस्पेक्ट टू y प्लस w पार्शियल v विथ रिस्पेक्ट टू z प्लस पार्शियल v विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये हमने फार्मूला पढ़ा था पिछले, तो उसी को यूज़ किया हुआ है हमने। खाली हमने क्या किया है इसमें 3 डायमेंशन या 2 डायमेंशन में, इसलिए इसको हटा दिया है। तो हम सिंपली यही फार्मूला लिख रहे हैं और इस न्यूमेरिकल को सोल्व कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, v हमें पता है कितना है 3 प्लस 2xy प्लस 40 स्क्वायर आई प्लस एक्स आई स्क्वायर प्लस 3t j। तो हमने पार्शियल v विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, पार्शियल मीन के y क्या होगा कांस्टेंट कंसीडर होगा और t भी क्या होगा कांस्टेंट कंसीडर होगा, x को हम वेरिएबल लेंगे। तो पार्शियल v विथ रेस्पेक्ट टू x लेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। इस तरह 2x है तो 2x का डेरिवेटिव 2xy है तो y कांस्टेंट है और 2 कांस्टेंट है, तो 2 हो जाएगा 2yi, ठीक है। तो हमारे पास ये 2y आ जाएगा इसका। सिमिलरली 40 स्क्वायर का 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या है 2yi आ जाएगा प्लस इस तरह x का 1 आ जाएगा y स्क्वायर j, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। सिमिलरली इसका भी हम डेरिवेटिव ले लेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, पार्शियल v विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है हमने, क्योंकि हमने इसमें पुट करना है बाद में, ठीक है। फिर बाद में t के साथ भी लेना है, तो हमने तीनों डेरिवेटिव लेने हैं। अब हम y के साथ कैसे लेंगे, ये कांस्टेंट होगा, इसका 2x हो जाएगा, ठीक है। तो 2x इसका 0 हो जाएगा, तो 2x आए, तो इस तरह 2xy
और ये 0 या 2xyj हो जाएगा। ठीक है, इस तरह t के लिहाज से हम करेंगे अगर तो इसको, तो t का डेरिवेटिव क्या होगा, ये 0 काउंट होगा, ये भी 0 काउंट होगा, 4t² है तो 8t हो जाएगा i, ये भी 0 काउंट होगा, प्लस 3j, 8i प्लस 3j। तो वहाँ पर ये आ गया। तो अब हमने क्या करना है, इस फार्मूलेज में वैल्यूज पुट करनी है सभी। तो u पार्शियल v विथ रिस्पेक्ट टू x, तो u हमारे पास क्या है, हमने पुट कर लिया, उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कर लिया, प्लस v विथ पार्शियल v विथ रिस्पेक्ट टू y प्लस v पार्शियल v विथ रिस्पेक्ट टू t। तो हमने सारों की वैल्यूज इसमें पुट की हैं a में। ठीक है, तो हमारे पास क्या किया, ये हमारे पास ये वैल्यूज पुट की हैं। तो हमारे पास क्या होगा a में, देखें जैसे कि यहाँ पर एक किस चीज़ का कंसीडर है, u पार्शियल v विथ रिस्पेक्ट टू x, u क्या है हमारे पास, u है 3 प्लस 2xy प्लस 4 इसका, तो हमने ये पुट किया। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास, u मल्टीप्लाई बाय पार्शियल v विथ रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल v विथ रिस्पेक्ट टू x क्या है, 2y i प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आ गया। सिमिलरली इसका हमने किया है 2x, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास अगेन ये वाला है, तो इसको हमने क्या करना है, अगेन सारों से मल्टीप्लाई करना है, इसी तरह ये सारे मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, इसका x के साथ फिर y के साथ, ठीक है, y के साथ 2xi प्लस 2xyj हो जाएगा। ठीक है, 2xi प्लस 2xyj हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हमने इसका भी कंपोनेंट लेना है, तो इसका क्या होगा, 80i प्लस 3j। ठीक है, तो इस तरह हमने सबको मल्टीप्लाई कर लिया है। ठीक है, तो हमने क्या लेना था इसमें, देख लें दोबारा, u क्या था हमारे पास, उसको पुट करना है, v क्या था, उसको पुट करना है। ठीक है, तो u हमारे पास ये था और v ये था, तो u हमने ये पुट किया था, उसके साथ ये मल्टीप्लाई कर लिया, v इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर लिया, और पार्शियली ये सिंपली ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस तरह कर लिया, तो फिर हमने क्या किया, वैल्यूज पुट कर ली, उसके बाद वैल्यूज पुट की, तो आपस क्या आएगा आंसर, सबकी वैल्यूज पुट करेंगे तो अंडर रूट 186 ये पूरा आएगा, तो 186 यूनिट आ गया। इसका यही आंसर है सिंपली। इसी तरह का एक और नंबर है ये वाला। ठीक है, ये लोग आप खुद कर लेना। इसमें भी ये बताया हुआ है कि द वेलोसिटी अलोंग द सेंटर लाइन ऑफ द नोजल ऑफ द लेंथ l इज गिवन बाय v is 2t 1 minus x upon 2l whole square, where v is the velocity in meter per second, t is the time in second, x is the distance from the nozzle. Calculate the local acceleration, आपने acceleration कैलकुलेट करनी है, local kinetic acceleration and total acceleration, जब टाइम 2 सेकेंड हो, x 1 मीटर हो और लेंथ 1.6 मीटर हो। तो हमारा ये फार्मूला गिवन है। तो हमने क्या करना है, लोकल एक्सेलेरेशन के लिए हमारे पास इसको डेरिवेटिव करना है विथ रेस्पेक्ट टू टी, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो हमें पता है कि पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है, टू, ये टी कांस्टेंट कंसिडर, ये इसको वेरिएबल कंसिडर करेंगे, तो टी का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 2l स्क्वायर। तो हमने वैल्यूज पुट करनी है, उसमें से आपको आंसर आ जाएगा 0.945। इसी तरह हमने इसको कन्वर्टेड एक्सप्रेशन को लेना है, तो v पार्शियल v विथ रेस्पेक्ट टू x जैसे हमने पहले ही लिया था। ठीक है, तो v पार्शियल v विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा, तो u कंपोनेंट आएगा या जो भी है। तो आपने क्या करना है, अभी u कंपोनेंट गिवन नहीं है, टोटली गिवन है, तो बस 2t इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 12 होल स्क्वायर इंटू पार्शियल v विथ रिस्पेक्ट टू x। पार्शियल v विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आ रहा है, पार्शियल v विथ रिस्पेक्ट टू x आ रहा है। ठीक है, तो आपस ये क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव होगा। ठीक है, अब 2 ये नीचे आ जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 12 पावर क्या हो जाएगा, हाँ पास बढ़ जाएगा, तो 1 माइनस एक्स पान 2l हो जाएगा, ये होल स्क्वायर। तो आपस ये कैसे है, 2 इसका डेरिवेटिव का नीचे आ गया इंटू टी। ठीक है, 1 माइनस एक्स अपॉन 2l, तो ये 40 हो जाएगा, तो 2t हो गया ये। ठीक है, तो 40 हो गया इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 2l, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इसको सारे को हमने डेरिवेटिव को लीव करवाया है। ठीक है, फिर हमने पार्शियल वी थ्रू एक्सएल मल्टीप्लाई कर दिया, वी हमारे पास क्या था, ये था पहले 2t 1 माइनस एक्स अपॉन 2l होल स्क्वायर, तो वी हमारे पास सेम आ गया। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, पार्शियल वी थ्रू टू, तो ये 40 2t इंटू 2 होगा। ठीक है, तो 2t इंटू 2 आ गया। अब इसका 1 माइनस एक्स अपॉन 2l होल पावर 2 माइनस 1, तो ये होल पावर 2 माइनस 1 है, तो 1 पावर जाए 1 माइनस एक्स अपॉन 12। ठीक है, अब अपान में इसका डेरिवेटिव लेना है। अब डेरिवेटिव इसका क्या आएगा, एक्स अपॉन 12 का माइनस एक्स अपॉन 1 अपॉन 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पुट कर लिया, तो इसमें माइनस 40 स्क्वायर अपॉन एल इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 12 होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 6 सेकेंड और एक्स को 1 पुट करना है, तो 6 सेकेंड में वापस क्या आ जाएगा, 4 इंटू 6 स्क्वायर अपॉन 1.6 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1.6 होल क्यूब, तो वहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। इस तरह टोटल एक्सप्रेशन दोनों का सम हो जाएगा। सही है।
तो आप लोग आए नहीं, वरना डिस्कशन भी होती है इस पर। अगर आपको जो पॉइंट डिस्कस नहीं होता, समझ नहीं आता, तो आप लोग चले गए हैं। सही है, तो आप लोग आखिर तक सीरियस नहीं हुए, तो ये आपकी मर्ज़ी है। तो यही तरह का सेशन। थैंक यू।